Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. Yes, getting in the very latest now, coming in from Uttarakhand, where flash floods caused by incessant rainfall actually still continues to create havoc in the state. Over 30 lives have been lost already. Several are feared missing, with heavy rain still predicted for the next few days. Parts of the national highway there, remember, have also been blocked or cut off, with several roads damaged. Rescue teams also forced to trek now to remote areas. These are the reactions we are getting to hear. मुझे थोड़ा सा बस डिटेल बताइए, जो मेडिकल कैंप आपने खोला है इसमें क्या आप हेल्प दे पा रहे हैं, जो अगर कोई विलेजर आ रहे हैं, बेसिक फर्स्ट एड है या उससे ज़्यादा कुछ है? मैम, हमारे पास बेसिक फर्स्ट एड है, अलॉन्ग विद हमारे पास टेक्निकली वी आर फुली इक्विप्ड। बेसिक फर्स्ट एड के साथ साथ हम लोग जो विलेजर्स कॉमन सिविलियंस हैं यहाँ पे, उनको भी हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट जो कैजुअलिटीज हुई थी, ऑलमोस्ट 13 कैजुअलिटीज वर थे, जिसमें से 7 इंजर्ड थे एंड 6 वर डेड जो कि निकले थे। आज मॉर्निंग में एक डेड और निकला है। तो एज सच हम लोग सारे फर्स्ट एड, मेनली हमारा फर्स्ट एड है। तो अभी जो आ रहे हैं, अगर कोई हेल्प के लिए, किस तरह का प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं आपके पास? मेनली जो अभी आ रहे हैं वो बेसिकली दर्द के कारण से आ रहे हैं। तो सब, किसी को जॉइंट पेन है, किसी को चोट लगा है, किसी का सूचर होना है, किसी का सिर फटा हुआ है, वो लोग हमारे पास आए थे। इसके अलावा अभी बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम और पेट दर्द और एसिडिटी वगैरह, इस टाइप से आ रहा है। आप लोग क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉयड भी हैं, कितना लेवल का कैजुअलिटी आप लोगों को पता लग पा रहा है और कितने इंजर्ड हैं? कुछ अगर आप स्टेटिस्टिक दे पाए हमको। स्टेटिस्टिक्स मैम एज सच तो क्लियर नहीं है, बट ऑलमोस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि देयर वर 20 हाउसेस, उसमें से 7 वर कोलैप्स्ड, बरीड अंडर द सैंड एंड रॉक्स। तो 7 घर के लोग, तकरीबन 30 लोग थे। 30 लोगों में से 30 जो है वो रिकवर हो गए। 13 रिकवर हो गए। 13 में से 6 वर डेड, 7 वर डेड एंड 6 वर इंजर्ड। 7 जो डेड थे वो पीएचसी में हमने रेफर कर दिया उनको, और वो उनका हो गया क्रिमेशन। We are deployed here since 1st July in the morning around 10 o'clock, and Army, ITBP, SSB and some volunteer students are deployed here along with the local police from Ascot police station. And since 1st July we have been carrying out the rescue operations over here, and by now we have rescued 6 of them alive, and 10 of them dead. Today's statistics is around 16 have been recovered finally, and still around 10 to 11 are still missing. As the CEO, Chaudhary, what exactly are the problems, the difficulties that you're facing? Because it's been, the downpour has been constant. Yeah, firstly the weather is not keeping up, but however whenever we get time we go for the rescue operation and search in this, you can see the area here, and the problems really we face are like we don't have any modern like the equipment which can basically help us to clear the debris and find people who might be within the buildings which has collapsed. Also, if there was some sniffer dogs and even this small JCBs which could come to this place, it will help us. Think there's no access? Is it because the access is somewhere around 400 to 500 meters away from here, and very difficult to reach this place. So how many teams actually in number have been deployed here, and most importantly, till when are you likely to continue? Because perhaps it does appear that it will not be very likely if you'll find many survivors. With regards to the teams, I'll say Army, ITBP, SDRF, SSB and police. We all are here, around 5 to 6 teams who are in the search operations here, and we want to continue till we find the last man who is buried in the ground. हमारी एसडीआरएफ से लेकर के दूसरी सारी जो इस काम में लगी हुई प्रशिक्षित दल है, वो टुकड़ियां अपने अपनी जगहों पर काम कर रही हैं। उनकी प्रेजेंस हमने और बढ़ा दी है। हमारा रेस्पॉन्स टाइम किसी तरीके की कहीं चुनौती आती है, उसके प्रति हमने पहले औसतन 2 घंटा था, मैंने उसको 1 घंटा लाने के लिए कहा है। सड़कें जो है ये साफ तौर पे बता दिया गया, 3 घंटे से ज्यादा औसतन बाधित नहीं होनी चाहिए राज्य के अंदर। और हमने यात्रियों तक
जो कहीं यदि यातायात बाधित होता है तो हमारे अधिकारी फौरन पहुंचे, उसके लिए रूट मजिस्ट्रेट बना करके रख दिए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर और नायब तहसीलदार से ऊपर के अधिकारियों को नामजद किया गया है। या जो कहीं कहीं फंसेंगे तो उनकी सुरक्षा का, उनकी भोजन का, उनके ठहरने का सारा इंतजाम राज्य की तरफ से किया जाएगा। लेकिन अभी ऐसी स्थितियां हैं नहीं जिसको भयावह कहा जाए। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते इस बात को कहना चाहता हूं कि सारा जनजीवन राज्य का करीब करीब सामान्य है। हाँ, ये चुनौतियां हर बरसात में हमारे सामने आती हैं, इस बार ज्यादा बड़े पैमाने पर आई हैं, तो जितने बड़े पैमाने पर आई हैं उतनी ही मुस्तैदी के साथ हम जो है उसका सामना करने के लिए भी तैयार हैं।